بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی ملک میں دولت آباد نامی ایک شہر تھا۔ اس شہر میں حامد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ اس کے باپ نے اس کو ایک نان بائی کی دکان پر چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے رکھوا دیا تھا تاکہ گھر کے اخراجات چلانے میں کچھ آسانی ہو جائے۔ دکان کا مالک بشارت نامی ایک نوجوان لڑکا تھا اور بہت نیک دل تھا۔ وہ حامد کو بالکل اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا تھا اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ بشارت نے اپنی محنت اور ایمانداری کی بدولت کافی شہرت حاصل کر لی تھی اور اس کی دکان خوب چلتی تھی۔ رات کو جب دکان بند ہوتی تھی تو وہ حامد کو بچے ہوئے کلچے، تافتان اور شیر مال بھی دے دیا کرتا تھا، جنہیں حامد گھر لے جاتا اور سب گھر والے رات کا کھانا پیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ اس کی ماں اگر کسی وجہ سے سالن نہیں پکا پاتی تھی تو وہ لوگ تافتان اور شیر مال دودھ میں بھگو بھگو کر کھا لیا کرتے تھے۔ حامد کو بشارت نان بائی کی دکان سے جو پیسے ملتے تھے وہ پیسے اپنے باپ کو دے دیتا تھا۔ ان کو جمع کر کے اس کا باپ ایک بکری بھی خرید لایا تھا، جس سے انہیں دودھ کی بھی آسانی ہو گئی تھی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ نان بائی بشارت کو گھر پر کوئی کام پڑ گیا۔ اس نے حامد کو جلدی چھٹی دے دی اور خود گھر چلا گیا۔ چھٹی ملنے پر حامد بہت خوش تھا۔ اس نے سوچا کہ آج وہ سارا دن گھومے پھرے گا۔ وہ بازار کی طرف نکل گیا۔ نان بھائی بشارت نے گھر جاتے ہوئے اسے چند سکے بھی دے دیے تھے اور کہا تھا کہ بازار سے کوئی چیز لے کر کھا لینا۔ حامد کو جلیبیاں بہت پسند تھیں۔ اس کو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بہت محبت تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ گرم گرم جلیبیاں خرید کر گھر لے جائے گا اور سب گھر والوں کے ساتھ کھائے گا۔ وہ بازار پہنچا تو وہاں بڑی گہما گہمی تھی۔ دکانوں پر لوگوں کا رش تھا۔ ایک طرف بہت سے مزدور ایک قطار میں بیٹھے اس انتظار میں تھے کہ کوئی انہیں مزدوری کروانے کے لیے ساتھ لے جائے گا۔ دودھ والے کی دکان پر بیٹھے لوگ بڑے بڑے پیالوں میں دودھ پی رہے تھے۔ وہ ایک جلیبی کی دکان پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جلیبی والا بڑے سے تیل کے کڑاؤ میں جلیبیاں بنا رہا تھا اور انہیں شیرے کے ٹب میں ڈالتا جا رہا تھا۔ حامد نے سکے نکالنے کے لیے ابھی جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بڑی سی 2 گھوڑوں والی بگھی وہاں سے کچھ دور آ کر رکی۔ اس میں سے ایک بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی اترا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہاں پر کھڑے ہوئے 8-10 سال کے ایک بچے کو اٹھا کر بگھی میں ڈالا اور بگھی چل پڑی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ نہ تو وہ اس بچے کی شکل دیکھ سکا اور نہ ہی یہ سمجھ سکا کہ ہوا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ بگھی میں بیٹھا ہوا بدمعاش کسی بچے کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ حامد نے فوراً ہی اس بگھی کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ بازار کے لوگ بھی اس واقعہ پر ہکا بکا تھے اور انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ بگھی میں 2 تازہ دم گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ حامد 14-15 سال کا ایک دبلا پتلا سا لڑکا تھا۔ وہ اپنی پوری قوت سے بگھی کے پیچھے دوڑا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پر اسرار بگھی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ حامد مایوس نہیں ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس بچے کو بدمعاش لوگ تاوان کے لیے پکڑ کر لے گئے ہوں گے۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دے گا۔ وہ ایک بہادر اور عقل مند لڑکا تھا۔ زمین کچی اور ریتلی تھی۔ وہ بگھی کے پہیوں کے نشان دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ وہ چلتا گیا مگر ایک جگہ اس کو رکنا پڑ گیا۔ آگے سمندر تھا اور یہاں آ کر بگھی کے پہیوں کے نشان غائب ہو گئے تھے۔ حامد کو بہت مایوسی ہوئی اور وہ ناکام و نامراد واپس لوٹ گیا۔ اس کا دل اس واقعہ سے بہت افسردہ ہو گیا تھا۔ وہ بدمعاش نہ جانے کس کی ماں کے لگتے جگر کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ جلیبیوں کا خیال چھوڑ کر وہ سیدھا گھر پہنچا تاکہ ماں کو اس واقعہ کے بارے میں بتائے۔ جیسے ہی وہ اپنی گلی میں داخل ہوا اس کو عبدل کے گھر کے سامنے لوگوں کا جمگٹا نظر آیا۔ وہ ایک ماہر تعمیرات کاریگر تھا اور بڑے بڑے وزیروں اور امراء کے محل تعمیر کرتا تھا۔ بادشاہ کا نیا محل بھی اس نے ہی بنایا تھا۔ پوچھ گچھ کرنے پر پتہ چلا کہ بازار سے اس کا چھوٹا بیٹا وہ بدمعاش اغوا کر کے لے گیا ہے۔ عبدل اور اس کی بیوی اس واقعہ سے سخت پریشان تھے۔ اس کی بیوی کو غش پر غش آ رہے تھے اور پاس پڑوس والے ان کو تسلی دے رہے تھے۔ حامد افسردہ دل کے ساتھ گھر چلا آیا۔ گھر آ کر اس نے ساری کہانی ماں کو سنائی۔
माँ सीधी सादी थी, घबरा कर बोली, हामिद तुझे उन बदमाशों के पीछे नहीं जाना चाहिए था। अगर वो कुछ नुकसान पहुंचा देते तो क्या होता। हामिद ने कहा, माँ फ़ायदा और नुकसान तो अल्लाह के हाथ में है। आप ही ने तो कहा था कि किसी को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने भी उस बच्चे की मदद करना चाही थी। उसकी माँ खामोश हो गई। वैसे वो अभी तक फिक्रमंद थी। रात को उसकी माँ ने उसे किसी काम से बाजार भेजा। वो अभी रास्ते में ही था कि क्या देखता है, वो ही बग्गी जिसमें अब्दुल के बेटे को अगवा किया गया था एक खुले मैदान में आकर रुकी। हामिद जल्दी से एक दरख्त के पीछे छुप गया। उस बग्गी से एक आदमी उतरा और इधर उधर देखता हुआ अब्दुल के घर की जानिब बढ़ने लगा। हामिद भी बड़ी एहतियात से उसके पीछे चल पड़ा। रात ज़्यादा हो गई थी। सब लोग अपने अपने घरों में मौजूद थे। गली मोहल्ले सुनसान पड़े हुए थे। अब्दुल ने इस वाक़या के फ़ौरन बाद कोतवाली जाकर अपने बेटे के मुतल्लिक रब्ट लिखवा दी थी और शहर के कोतवाल ने उसको तसल्ली दी थी कि वो जल्द ही उसके बेटे को ढूंढ निकालेंगे। कोतवाल ने अपने बहुत से सिपाहियों को इस काम पर लगा दिया था। उसे खदशा था कि अगर बच्चा न मिला तो अब्दुल बादशाह से फरियाद करेगा। बादशाह इसको बहुत अच्छी तरह जानता था क्योंकि उसका नया और खूबसूरत महल अब्दुल की निगरानी में ही बना था। इस वजह से कोतवाल को खतरा था कि बादशाह इस सिलसिले में इससे बाज़पुरस करेगा। वो पुरअसरार आदमी अब्दुल के घर के पास रुका। हामिद भी उसके बहुत करीब पहुंचकर एक दीवार की ओट में खड़ा हो गया और थोड़ा सा सर निकाल कर उसको देखने लगा। उस आदमी ने इधर उधर देखते हुए दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने वाला अब्दुल था। वो ये समझा था कि शायद उसका बेटा मिल गया है और कोतवाल उसको अपने साथ लाया है। उसने जब दरवाज़ा खोला तो उस खौफनाक आदमी की शक्ल देखकर खौफजदा हो गया। उस आदमी ने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, तुम्हारा बेटा हमारे पास कैद है। तुमने बादशाह का महल बनाया था। तुम अगर अपने बेटे की ज़िंदगी चाहते हो तो बादशाह के महल का नक्शा हमारे हवाले कर दो। ये बात याद रखना कि तुम इस बात का तज़किरा किसी से नहीं करोगे, वरना हम तुम्हारे बेटे को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। उस आदमी की बात सुनकर अब्दुल के चेहरे से खौफ के आसार दूर हो गए। उसने सख्त लहजे में कहा, बादशाह सलामत के महल के नक्शे को लेकर तुम ज़रूर उनको कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हो। पूरी रियाया बादशाह सलामत की वफादार है। मैं भी उनका वफादार हूँ। तुम कुछ भी कर लो, मैं बादशाह सलामत से गद्दारी नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर वो आदमी तैश में आ गया। उसने लात मारकर दरवाजे पर रखा गमला तोड़ दिया और खूनखार लहजे में बोला, मैं कल इसी वक्त फिर आऊँगा। अच्छी तरह सोच लेना, बादशाह की वफादारी चाहते हो या अपने बेटे की ज़िंदगी। तुम हमें जानते नहीं हो, हम बहुत ख़तरनाक लोग हैं। हामिद ने ये तमाम बातें सुन ली थीं। उसने जब ये सुना कि ये शख्स बादशाह सलामत को नुकसान पहुंचाने का सोच रहा है तो हामिद को भी बहुत गुस्सा आया। उसने तहैया कर लिया कि वो इन लोगों के अज़ाइम खाक में मिलाने की पूरी कोशिश करेगा। वो बिजली की सी तेज़ी से अपनी जगह से उठा और दबे कदमों दौड़ता हुआ बग्गी के पास आया। बग्गी के पीछे वाले हिस्से में सामान रखने के लिए लकड़ी का एक छोटा सा केबिन बना हुआ था। उसने जल्दी से उसका दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। वो काफ़ी कुशादा था और खाली था। हामिद जल्दी से उसमें बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो आदमी भी वापस आ गया और बग्गी चल पड़ी। बग्गी के उस केबिन की दीवार में एक दो जगह छोटे छोटे सुराख थे। हामिद उन सुराखों में से बाहर झांकने लगा। थोड़ी देर बाद बग्गी समुंदर के किनारे पहुंच गई। हामिद को एक बहुत बड़ा पानी का जहाज नजर आया। बग्गी नज़दीक पहुंची तो जहाज से एक तख्ता खोलकर किनारे से लगा दिया गया। बग्गी उस पर से होती हुई जहाज के अरशे पर पहुंच गई। अब हामिद की समझ में ये बात भी आ गई कि बग्गी में दो घोड़े क्यों जोते गए थे। एक अकेला घोड़ा इस ढहलवान लकड़ी के तख्ते से ऊपर नहीं चढ़ सकता था। हामिद को केबिन की दीवारों के सुराखों से जहाज के अरशे पर तलवारों से मुसल्ला बहुत सारे अफराद नजर आए। ये सोचकर उसके रोंगटे खौफ से खड़े हो गए कि वो बहरी डाकुओं के जहाज पर पहुंच गया है। बग्गी अरशे पर पहुंची तो उसमें बैठा हुआ आदमी नीचे उतर गया। दो आदमी घोड़ों को खोलने लगे और फिर बग्गी को एक कोने में खड़ा कर दिया गया। हामिद इस इंतज़ार में था कि डाकू खाने पीने से फारिग होकर सोएं तो वो इस केबिन से निकलकर
अब्दुल के लड़के को तलाश करे। आधी रात के वक्त सब लोग सोने के लिए चले गए। बहरी जहाज भी समुद्र में खड़ा था। हामिद को भूख भी सताने लगी थी। जब हर तरफ खामोशी छा गई तो वो खामोशी से केबन से निकला। उसके दाएं तरफ बावर्ची खाना था और एक तख्त में खुशबूदार तली हुई मछलियां रखी हुई थीं। उसने कुछ मछलियां एक थैले में डालीं और वहां से निकल गया। अब वो जहाज के उस हिस्से में आ गया था जहां उसके दाएं बाएं डाकुओं के कमरे थे और सबके दरवाजे बंद थे। उनको इस बात का जरा सा भी खदशा नहीं था कि वहां पर कोई आ सकता है, इसलिए हामिद को कोई पहरेदार भी नजर नहीं आ रहा था। सामने जाकर एक रास्ता नीचे जाता नजर आया। वो सीढ़ियां उतर कर नीचे आया। ये डाकुओं का गोदाम था और यहां पर अनाज की बोरियां और लूटे हुए सामान के ढेर नजर आए। एक तरफ एक छोटा सा कमरा था। कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी और अंदर से हल्की हल्की सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। हामिद ने झपट कर दरवाजा खोला। अंदर अब्दुल का लड़का तलहा मौजूद था। एक ही मोहल्ले में रहने की वजह से वो हामिद को पहचानता था। तलहा ने हामिद को देखा तो उसके गले लगकर रोने लगा। हामिद भाई, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे इनसे बहुत डर लगता है। ये मुझे खाने को भी कुछ नहीं देते। इनमें से एक आदमी कह रहा था कि जब तेरा बाप हमें बादशाह के महल का नक्शा दे देगा तो हम तुझे खाने को भी देंगे और आज़ाद भी कर देंगे। उन्हें बादशाह के महल का नक्शा क्यों चाहिए? क्या ये लोग भी बादशाह सलामत जैसा महल बनाना चाहते हैं? तलहा की बात पर हामिद को हंसी आ गई। उसने हंसी रोककर तलहा को तसल्ली दी और थैले में से मछलियां निकालकर उसे दी। मछली देखकर वो खुश हो गया। भूखा तो था ही, जल्दी जल्दी खाने लगा। उसे खाता छोड़कर हामिद दोबारा दबे कदमों चलता हुआ बावर्ची खाने में आया और दूसरी कुछ खाने की अशिया और पानी लेकर दोबारा तलहा के पास आया। उसका भी भूख के मारे बुरा हाल था। वो भी खाने में शरीक हो गया। खाने के बाद हामिद ने उसे बहुत सी बातें समझाईं और उससे कहा कि वो जैसा कहे इस पर अमल करे। इसके बाद उसने तलहा को अपने साथ लिया, कमरे को बाहर से कुंडी लगाई और दोनों बड़ी खामोशी से चलते हुए बग्गी के पास आए और केबन के अंदर छुप कर बैठ गए। हामिद को अपने माँ बाप की फिक्र सताने लगी। उसकी गुमशुदगी से यकीनन बहुत परेशान हो रहे होंगे। वो तलहा को लेकर जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था, मगर वो लोग भी समुंदर में थे और कोई ऐसा जरिया भी नहीं था कि वो दोनों किनारे तक पहुंच सकते। अब तो सिर्फ एक ही हल था कि वो डाकू रात को अब्दुल से मिलने जाए और इस तरह वो लोग भी यहाँ से निकल जाएं। इन लोगों ने पेट भरकर खाना खाया था, इसलिए इस परेशानी में भी उन्हें नींद ने आ घेरा और वो सुबह देर तक सोते रहे। बाकी दिन रात का इंतजार करते करते गुजर गया। जब अच्छी खासी रात हो गई तो डाकुओं के जहाज ने साहिल का रुख किया और बग्गी लकड़ी के तख्तों पर से होती हुई खुश्की पर आई और तेजी से दौलताबाद की तरफ रवाना हो गई। तलहा बहुत खुश था। उसे अपनी अम्मा और अब्बा बहुत याद आ रहे थे। उधर अब्दुल ने सुबह होते ही बादशाह से मुलाकात करके उसे सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। बादशाह ने कहा, अब्दुल, हमें तुम पर फख्र है। तुमने हमारे भले को देखते हुए अपने बेटे की भी परवाह नहीं की। हम तुमसे बहुत खुश हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारा बेटा बाजियाब हो जाए। अब्दुल ने कहा, जहां पनाह, मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि कैसे भी हालात हों, आदमी को ना तो किसी मुजरिम की बात माननी चाहिए और ना उसके किसी जुर्म का हिस्सा बनना चाहिए। अब्दुल ने बादशाह को यह भी बता दिया था कि वो बदमुआश आज रात फिर उसके पास आएगा। बादशाह ने उसी वक्त कोतवाल को तलब किया और उसको ज़रूरी हिदायत देने लगा। बादशाह के हुक्म के मुताबिक कोतवाल ने अब्दुल के घर के चारों तरफ तलवारों से मुसल्लह सिपाही तैनात कर दिए। डाकुओं को अब्दुल से इस बात का खतरा नहीं था कि वो इस बारे में किसी को कुछ बताएगा, क्योंकि उसका बेटा उनके कब्जे में था। उस डाकू ने कल रात की तरह बग्गी को फिर उसी मैदान में खड़ा किया और खुद उसे उतरकर तेज तेज कदमों से अब्दुल के घर की जानिब रवाना हो गया। जब वो कुछ दूर निकल गया तो हामिद और तलहा भी बग्गी से बाहर आए और खामोशी से छुपते छपाते डाकू के पीछे चल पड़े। डाकू जैसे अब्दुल के घर के नज़दीक पहुंचा, सिपाहियों ने उसे काबू कर लिया। डाकू चिल्लाकर बोला, अब्दुल, तूने अच्छा नहीं किया। मैं अगर थोड़ी देर तक
अपने साथियों के पास नहीं पहुंचा तो वो तेरे बेटे को कत्ल कर देंगे। ऐन उसी वक्त हामिद तलहा के साथ सब लोगों के सामने आ गया। झूठ मत बोलो, अब्दुल चाचा का बेटा तो ये रहा, तुम्हारे जालिम साथी इसे कैसे कत्ल करेंगे? तलहा को देखकर डाकू का मुंह हैरत से खुल गया। अब्दुल ने दौड़कर तलहा को गले से लगा लिया और चिल्लाकर बोला, देख नेक वक्त, हमारा तलहा घर लौट आया है। उसकी चीखों पुकार सुनकर तलहा की माँ फौरन ही बाहर निकल आई और फिर जो वह तलहा से लिपट कर दहाड़े मार मार कर रोई तो देखने वालों की आंखें भी अश्कबार हो गईं। इसी असना में हामिद के माँ बाप भी वहाँ आ गए थे। उसकी माँ ज़रा भी परेशान नहीं थी। उसने हामिद को गले से लगाया और बोली, मैंने तो सबसे कह दिया था कि मेरा हामिद अब्दुल भाई के बेटे तलहा को लेकर ही आएगा। माँ की यह बात सुनकर तलहा को बहुत खुशी हुई। कोतवाल ने डाकू को उसी वक्त गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश किया। वो खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। बादशाह सलामत, ये डाकू इतने जालिम हैं कि इन्होंने तलहा को कुछ खाने को भी नहीं दिया था। हामिद ने बादशाह से कहा। बादशाह ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, तुम एक बहादुर लड़के हो, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हुए हैं। फिर वो कोतवाल की तरफ मुड़ा और बोला, ये क्या हो रहा है कोतवाल साहब? छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े डाकुओं को पकड़वा रहे हैं और आप हैं कि मज़े से आंखें बंद किए बैठे हुए हैं। समुद्री डाकुओं की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो हमारे महल का नक्शा हासिल करके न जाने हमारे खिलाफ कौन सी साजिश करना चाह रहे थे। कोतवाल, तुम्हारी कारकर्दगी से हम सख्त मायूस हुए हैं। बादशाह की बात सुनकर कोतवाल का खून खुश्क हो गया था और हाथ पांव में लर्जा तारी होने लगा। वजीर ने हाथ बांध कर अर्ज की, मेरा तो ख्याल है कि वो महल पर शब खून मारकर तख्त पर कब्जा करना चाह रहे थे। महल का नक्शा अगर उन्हें मिल जाता तो इससे उन्हें महल में रहने वालों के कमरों की निशानदेही भी हो जाती और इस बात का भी इल्म हो जाता कि महल में कितने पहरेदार इसकी हिफाजत पर मामूर हैं। कोतवाल ने शर्मिंदगी से गर्दन झुका ली थी। उसको इस बात पर सख्त शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था कि वो समुद्री डाकू यूं दंदनाते फिर रहे थे। बादशाह ने उसी वक्त जल्लाद को तलब किया और उससे कहा, अब हम इस डाकू से कुछ पूछेंगे, अगर ये जवाब न दे तो तुम इसकी गर्दन उड़ा देना। जल्लाद ने अपनी तलवार निकालकर हाथ में पकड़ ली और डाकू के सामने जाकर खड़ा हो गया। चमकदार तलवार देखकर डाकू का रंग फक हो गया। बादशाह ने उसको मुखातिब करके कहा, सच सच बताओ, तुम लोग महल का नक्शा क्यों लेना चाहते थे? डाकू ने थूक निगल कर कहा, बादशाह सलामत, हमारा सरदार बहुत लालची आदमी है। वो महल के नक्शे से आपके खजानों तक पहुंचना चाहता था ताकि उनको चोरी कर सके। खजाने को चोरी करके वो बहुत अमीर आदमी बनना चाहता था। बादशाह ने कहा, वो खजाना हमारा नहीं है, हमारी रियाया का है। वो अगर चोरी हो जाता तो फिर हम अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली बगैर पैसों के कैसे करते? अपनी फौज, सिपाहियों और दूसरे सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें कहाँ से देते? तुम्हारा जुर्म बहुत बड़ा है, तुम्हें इसकी सख्त सज़ा मिलेगी। इस डाकू को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद कोतवाल ने बहुत सारे सिपाही साथ लिए और हामी से कहा, अब तुम हमें उस जगह ले चलो जहाँ समुंदर में वो जहाज़ खड़ा है। हामिद और कोतवाल डाकुओं की बग्गी में बैठे और हामिद कोतवाल को रास्ता बताने लगा। सिपाही चुपके चुपके उन लोगों के पीछे आ रहे थे। समुंदर पर जहाज़ खड़ा था और उसमें मौजूद डाकू अपने साथी का इंतज़ार कर रहे थे। बग्गी देखकर डाकू ये समझे कि उनका साथी आ गया है। अंधेरा होने की वजह से वो कोतवाल और हामिद की शक्लें नहीं देख सके थे। जैसे ही लकड़ी के बड़े से तख्ते ने साहिल को छोड़ा, कोतवाल के सारे छुपे हुए सिपाही बाहर निकल आए और उस तख्ते की मदद से जहाज़ के ऊपर चढ़कर डाकुओं पर हल्ला बोल दिया। डाकू बेखबरी में पकड़े गए। चंद एक डाकू ने घबराकर समुंदर में छलांग लगा दी। कोतवाल के हुक्म पर उसके सिपाही भी समुंदर में कूद गए और भागने वाले डाकुओं को भी गिरफ्तार कर लिया। उनका सरदार जहाज़ के तहखाने में बैठा सोने के सिक्कों की बोरी खोलकर सिक्के गिन रहा था। उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। डाकुओं के जहाज़ से बहुत सारा लूटा हुआ माल बरामद हुआ था। बादशाह ने इन तमाम चीज़ों को उन लोगों को वापस कर दिया जिनको लूट कर डाकुओं ने इसे जमा किया था।
عبدل کو بادشاہ سے وفاداری کے بدلے اور حامد کو اس کی بہادری کے صلے میں بادشاہ نے 2,000 اشرفیاں انعام میں دیں۔ عبدل تو خیر پہلے ہی سے بہت امیر تھا، مگر بادشاہ کے انعام کی وجہ سے حامد اور اس کے گھر والوں کے دن پھر گئے تھے۔ اگلے روز جب حامد حسب معمول دکان پر پہنچا تو بشارت نان بائی نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی۔ اس نے کہا، حامد، اب تو تم ایک امیر لڑکے ہو گئے ہو۔ بادشاہ سلامت تمہاری بہادری سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ اب تم میری دکان پر کام نہیں کرو گے۔ حامد نے ہنس کر کہا، بادشاہ سلامت نے مجھے جتنی بھی اشرفیاں دی تھیں وہ تو میری ماں نے لے لی ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں نے کام کرنا چھوڑ دیا تو پھر جلیبیاں کہاں سے خریدوں گا؟ اور جناب، میرا تو یہ خیال ہے کہ آدمی کے پاس چاہے جتنی بھی دولت آ جائے اسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ اس کی بات سن کر بشارت نان بھائی بہت خوش ہوا اور بولا، حامد، میرا دل کہتا ہے کہ تم اپنی بہادری، خدا ترسی اور اچھے خیالات کی وجہ سے ایک روز بہت بڑے آدمی بنو گے۔ حامد نے مسکراتے ہوئے جھک کر اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر دکان کے کاموں میں لگ گیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔